Of every day I wake up, I'm like, shit, I'm still second. Yeah, I was talking to my team yesterday. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार अभी तो हम ठीक ठीक ही हैं, कल को अगर मेरी वीडियो वगैरह चली या फिर कुछ अच्छा हो गया तो यार मैं तो बहुत थक जाऊंगी। तो मुझे बड़ा भी बनना है लेकिन मुझे थकना भी नहीं है। तो क्या करना है। मुझे ये लोग ये पूछते थे माँ बाप को ले आप, मतलब मुझे क्या पता यार आप लोग क्या देखते हो बैठ के साथ में। आई डोंट नो व्हाट इज क्लीन और नॉट क्लीन फॉर यू। द शेयर जॉय दैट यू गेट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ना, कि अच्छा तुमने एक आइडिया सोचा या तुमने एक थॉट सोचा एंड देन यू सी, एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है। आई थिंक वो राइटिंग करो, एक लाइन लिखी हुई है मैंने और वो सारा दिन दिमाग में वो हाय रहता है कि यार आज इनको पता भी नहीं है कि आज मैंने ये सोचा और आज मैं ये सुनाने वाली हूँ। Hello and welcome to the Dada and Chat Room. This is your host Panish Kapoor and joining me today is Gurleen Panu. Welcome to the show, Gurleen. Hi guys. Thank you for inviting me. First of all, Dead End feels like I've made it in life, or in comedy at least. First of all, I wanted to say I'm just happy to have another comedian from my hometown, other than Jaspal Bhatti, who's actually funny. अरे, you've taken name of the legend now. मतलब So tell me about growing up in Chandigarh. What was that like? Were you always the funny person in the class, or did that come later? I think so. It came quite late actually. Before that, I used to when I was very young. So I used to go to my relatives and be like कि मैं आपको एक जोक सुनाऊं, and I used to memorize jokes ऐसे न्यूज़पेपर में या कहीं से मैंने पढ़ लिया होता था। तो I used to be known for that कि ये गुरलीन जोक सुनाती है याद करके। तो वो बहुत छोटे होते की बात है। But yeah, after that, so I'm not actually grown up in Chandigarh per se, because my father had a transferable job. Like he used to get transferred a lot. So I've done my schooling, most of my schooling from Jalandhar, which is my so my mother is from Jalandhar, so I've done my schooling there. But yeah, later in when I started growing up, and when I hit my like teenage years, I became the class clown. I used to crack jokes and have fun. I used to be good at studies, but I used to sit with backbenchers a lot. So I think that helped. That was my vibe also. I would finish the math questions early and then sit in the back and just do time pass. But so you started off doing theatre in college and then you ended up making the transition to stand-up. How did that happen? Yeah, it was, I think, very accidental but smooth also. I think, so I started doing theatre. When I started theatre, I used to think that writing is a very difficult thing to do. So I always want to do something which has nothing to do with creating or writing, acting karwa lo, or, just, and I used to do, so when I started theatre, I got to do two, these items, we used to call them items only, these two different things, and both of them were comedy related. So I think my exposure was to comedy was then it became a little real for me. So I was like, okay, fine, we do all this stuff, it's fine. But then one my friend, she started, she was organizing an open mic, or she was a friend who was organizing an open mic. She had a friend, so she called me and said कि यार तुम लोग तो ये सब करते रहते हो स्टेज पे, तो स्टैंड अप कॉमेडियन हमें मिल नहीं रहा। वैसे भी चंडीगढ़ में तो कहाँ इतने स्टैंड अप कॉमिक्स थे तब, मतलब थे बट इतने नहीं थे, तो उनको फीमेल भी चाहिए थे। ना ये हमारा गर्ल कोटा खाली है। तो उनका तू कर ले यार, तेरे को आता है, तू यू डू थिएटर आल्सो, व्हाई डोंट यू ट्राई स्टैंड अप। I watched a few videos. I used to watch as a stand-up thoda, but not much. So Sumit Anand's "It's My Birthday" video came out recently. So I watched that and I figured it out कि अच्छा ऐसे कुछ तो he's talking about himself. So I went up on stage and talked about teenage, and it went well. तो अगर वो अच्छा नहीं जाता, I would have stopped there only. But वो ठीक चला गया तो I continued. Otherwise मैंने नहीं करना था। इससे होता नहीं। But what got you hooked onto it? I mean, apart from the applause. I think, yeah, I think, so I discovered writing because of stand-up. I got into that. So I think the sheer joy that you get of creating something, like, अच्छा तुमने एक idea सोचा या तुमने एक thought सोचा, and then you are writing around it, and then you're expressing it कि यार मुझे ये लगता है, and then you see, एक तो instant gratification भी है, और फिर आपको immediate reaction भी मिल रहा है कि लोग हंस रहे हैं. And I think, but उससे भी ज़्यादा till date I look back and I question myself कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों हमने इतना बड़ा पंगा लिया हुआ है. आई थिंक वो राइटिंग करो, एक लाइन लिखी हुई है मैंने, और वो सारा दिन दिमाग में वो हाय रहता है कि यार आज इनको पता भी नहीं है कि आज मैंने ये सोचा और आज मैं ये सुनाने वाली हूँ. तो वो ही है. आई थिंक इट्स अबाउट क्रिएटिंग ओनली, राइटिंग जोक्स मे बी. And you mentioned Sumit Anand, but also were there other influences? क्योंकि पंजाब में, like we've spoken about Jaspal Bhatti, but there's also Gurpreet Kogi,
whom I saw, I remember playing at the press club once as a kid. So, did that, apart from the stand-up comedy scene, did that also come into in the work you were doing? Yeah, so I come from a Punjabi family. I have very funny people around me. So and obviously, so we used to watch a lot of these movies and skits. जैसे जसपाल भट्टी सर का तो पूरा शो था, वो हम देखते होते थे when we were young. And उनकी movies भी थी जिसमें गुरप्रीत कुकी भी थे. और उसके बाद पंजाब में तो बहुत comedy, it's very पुराना एक फोक आर्ट फॉर्म है, पंड बोलते हैं उसको. वो पंजाब में स्टैंड अप तब से शुरू है, मतलब वो रोस्ट lots of tapes and all also. हाँ, तो 2 लोग करते हैं और वो गाँव-गाँव में जाके, तो पंजाब में तो कॉमेडी बहुत पुराना है. तो हाँ, मतलब वो सब देख के बड़े हुए हैं. एंड देन फिर हम थिएटर करते हैं, तो थिएटर में वो पंड भी करते हैं. और मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो हमारे वाले में इट्स सेड दैट फीमेल्स करती नहीं होती थी जब ये आर्ट फॉर्म होता था. बट क्योंकि हम ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़े थे, तो हमारे में स्पेसिफिकली होता था कि पंड भी करेंगी लड़कियां. तो आई डिड दैट फर्स्ट ईयर ऑफ माय थिएटर में. मैंने वो भी करा था. तो वो इन्फ्लुएंस तो शुरू से था. एंड उसके लिए भी प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए मैंने देखे थे जसपाल भट्टी सर के शो पुराने, कि यार कुछ तो लिखना है, अब कुछ तो जोक क्रैक करने. तो हाँ, वो इन्फ्लुएंस तो शुरू से रहा है. और उसके बाद लाइक जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसमें से कौन, हु आर द आर्टिस्ट हु रियली इन्फ्लुएंस्ड? आई थिंक जिनको आई वुड से मेरा इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप था, वो था जाकिर खान्स वीडियो दैट रिलीज्ड, ऑल डेली गर्ल वाला वीडियो. जब वो पटा था, तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, और मैंने तब देखा था. तो मुझे तब पता लगा था कि अच्छा, ऐसा आर्ट फॉर्म है, कोई इंडिया में कुछ हो रहा है ऐसा कि लोग खड़े होकर जोक सुना रहे हैं. और तो मुझे तब ये नहीं पता था कि लिख के लाते हैं. मुझे ऐसा लगता था कि अरे क्या ये टैलेंट है यार, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड इट्स फनी. तो वो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन था. उसके बाद ऑब्वियसली फिर तो जब आप स्टैंड अप में वंस यू गेट इनटू दैट, फिर तो यू वॉच अ लॉट ऑफ इट. एंड मेरा इनफैक्ट जाकिर खान सर से पहले भी मेरा जो आई वुड से इंट्रोडक्शन टू स्टैंड अप, जो मुझे पता था कि इंटरनेशनली ऐसा आर्ट फॉर्म है, वाज केविन हार्ट. तो आई थिंक केविन हार्ट को मैं बहुत, बिकॉज उनको केविन हार्ट मैंने बहुत देखा है, तो उनके सारे स्पेशल बिफोर डूइंग कॉमेडी. तो हाँ, मतलब फिर तो उसके बाद तो इट बिकम्स, फिर तो आप इसको ऐसे ले लेते हो ना कि स्टडी कि चलो आप बताओ कि नया क्या डाला है किसी ने, तो फिर तो देखते रहते हैं. And so I think that open mic was in 2019, right? And then you got started, and then lockdown came. How annoyed were you? I was हाँ, so I was actually very annoyed. Annoyed से भी ज्यादा I thought कि यार अब क्या करना है, मतलब because I was out of college also. मेरा graduation complete हो गया था 2019 में, और मुझे ये पता था कि मुझे ना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी. पर मुझे ये नहीं पता था कि करना क्या. तो मुझे लगा था स्टैंड अप तो कर ही रहे हैं, कुछ तो I'll do around art form only. But then lockdown happened. फिर मुझे लगा अब तो सभी कुछ नहीं कर रहे, तो चलो ठीक है, अब सभी कंफ्यूज है. तो मैं तो कंफ्यूज थी, बट मुझे लगा चलो सब घर पे बैठ गए, तो अब उतना प्रेशर नहीं है. बट या आई गॉट अ लिटिल आई वुड से पैरानॉइड पे तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट अ लिटिल स्ट्रेस कि यार अब स्टैंड अप नहीं हो रहा. तो उसके लिए फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए. तो मैंने कहा क्रिएटिविटी दिखानी है कहीं. एंड फॉर्चुनेटली वो भी मेरा थोड़ा बहुत चल गया. तो वहां से मुझे एक शो मिल गया लिखने के लिए विद गुरसिमरन खंबा, अमित टंडन सर एंड ऑल ऑफ देम. चलो कोई बात नहीं, शो ऑन लिव. तो वो फिर जब मुझे वो मिल गया, और उसमें आई गॉट माई फर्स्ट, आई वुड से नॉट माई फर्स्ट पे चेक, बट या फर्स्ट बिग पे चेक. तो मैंने कहा चलो अब तो अब तो कमाई भी होगी, तो घर वालों को बता सकते कि इसमें कुछ करा जा सकता है. तो या तो मेरे लिए लॉकडाउन भी स्मूथ ही निकला. And then when you sent in that entry to Comicstan, like, were you expecting to get in? How excited were you when you realized you were making it to the show? I don't know if I can share this or not, but मेरी एंट्री भी बहुत एक्सीडेंटल थी कॉमिक्सतान में. I think most of the everybody knows behind the camera, but on camera नहीं पता शायद. हाँ, but जब वो हुआ था मेरे साथ, yeah, I was very surprised. I was very I would say मेरा माइंडसेट ऐसा था कि चलो मेरे पास कुछ है नहीं, एंड दिस इज समथिंग इज, ये थोड़ा सा एक ना रे ऑफ होप कि चलो ये आ रहा है. तो आई वाज लाइक कि चलो वन मोमेंट एट अ टाइम लेते, बट आई विल गिव माय ऑल. मतलब मैं सारा, मेरे को जैसे उन्होंने अगर वीडियो बनाने के लिए भेजा, उन्होंने भेजा कि अपना कोई वीडियो शेयर करो, तो मैंने पुराना वीडियो भेजने के बजाय उस टाइम रिकॉर्ड करके भेज दिया. मैंने कहा नहीं, पुराना नहीं भेजना है, चांस लेना, नया वाला मटेरियल भेजेंगे. तो ऐसा ऐसा करके या आई वाज वेरी सरप्राइज एंड शॉक. बट हाँ, मतलब आई टुक ऐसा चिली थी मैं, क्योंकि मुझे पता था मेरा होगा नहीं. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना एंजॉय करो, सिलेक्ट तो होना नहीं हमने. तो मैं ऐसे चल रहा था. And how was your experience on the show? Because मतलब आपने तो कुछ क्या 8-9 महीने परफॉर्म किया होगा, and then suddenly you're on this show with all these guys. How was that? I was very very happy actually. पता नहीं, I had this energy of excitement. मेरे को लग रहा था कि यार
एक तो मैं सबको जानती नहीं थी. आई ओनली न्यू आई थिंक आशीष सोलंकी का मैंने नाम सुना था बस, क्योंकि वो मेरे को सुनने में आया था कि ही इज अ वेरी गुड कॉमिक और ये वो. एंड आदेश के मैंने वीडियो देखे हुए थे. और पवित्रा का मैंने उसके साथ माइक्स वाइक्स करे हुए हैं, तो मुझे ऐसे पवित्रा शेट्टी नाम पता था. एंड आई न्यू दैट शी इज कॉमिक फ्रॉम मुंबई, जो पहले से करते आ रहे. तो मैं उसमें बहुत एक्साइटेड थी, करे इन लोगों के साथ है ना रहने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बाय द फैक्ट कि मेंटरिंग होगी. तो मेंटरिंग से सब मेंटर्स जो कॉमिक्स हैं जिनको आई वॉच देम, उनके साथ फोटो खिंचवा पाएंगे. तो मेरा उतना ही था गोल कि मेरे को सबके साथ फोटो वोटो मिल जाएगी और सबके साथ बात हो जाएगी. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली. यार मेरे को प्रेशर ही नहीं फील हुआ कि ऐसा कोई शो टेप भी हो रहा है और ये ना ये Amazon पे आएगा, इट्स अ कॉम्पिटिशन. वो सब पे तो मेरा ध्यान ही नहीं था. मेरा बाकी चीजों की तरफ ध्यान था कि अरे मुंबई जाने को मिलेगा, घर से बाहर निकलेंगे. तो मेरा था. And you ended up as the first runner-up, so you came so close to winning the prize. Do you have any regrets? Of every day I wake up, I'm like, shit, I'm still second. नहीं ऐसा नहीं है. I don't have any regrets because I think I would have had regrets अगर मैं पूरा शो ऊपर नीचे चल रहा होता मेरा और फिर मैं किसी तरीके आई वुड हैव एंडेड अप इन द फिनाले और फिर मेरे को लगता कि अरे यार अब मेरे को फर्स्ट आ जाए. बिकॉज मैंने पूरा शो में का मेरा शो पूरा इतना अच्छा गया, एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था कि मैंने ना उसको रैंकिंग और पोजीशन के हिसाब से देखा नहीं. वो अलग बात है कि मेरे लिए चीजें वर्कआउट कर गई या आई डोंट नो लोगों को पसंद आ गया कि आई एंडेड अप बीइंग द top of the charts whatever, but I never took it हाँ की कोई पोजीशनिंग हो रही है. मेरे दिमाग में था कि ये प्लेटफॉर्म है, ये एक एक स्टेज मिला है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं सुनने, रिकॉर्ड हो रहा है और हमें वो यूट्यूब वाला भी एक रहता है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो चीज कहीं जाने वाली है. तो मुझे लगता था कि ये 3 मिनट जो मिले ना इसमें बेस्ट अपना कर दो कि कल को अगर कोई इसको देखे तो उसको फनी लग जाए, ताकि मुझे काम मिल जाए बस, कि मेरा आगे काम चल जाए. तो मैंने उसकी तरीके से लिया था एंड वो चीज मेरे लिए काफी वर्क कर गया आई वुड से. तो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई एम ओनली लाइक आई थिंक आई गॉट लकी. तो मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं. मैंने कहा जो मिल रहा है ले लो, 10 लाख भी बहुत होते हैं, कोई बात नहीं. 20 लाख वाला लालच नहीं करते. प्लस ऑब्वियसली बट आशीष डिड दैट डे, इट ही हैड टू विन. मतलब कम ऑन, दैट वाज ओनली फेयर. Plus, I think you two seem to get along quite a bit. I notice you guys keep joking about that first, second placement with each other also and at your shows. तो ये तो हमने पहले ही सोच लिया था जब ये रिकॉर्ड हुआ, फिनाले का रिजल्ट आ गया था, तो हमने तभी सोच लिया था कि यार ये जो होता है ना, ये हम ना आपस में ना थोड़ा बना के रखेंगे लोगों के सामने, इस तरह की हम तो एक दूसरे की रेलेवेंसी मेंटेन करते रहे. तो हम उसके लिए ये सब करते रहते हैं. बाकी उस दिन जिस दिन हमने ये वीडियो, एक्चुअली हम दोनों के पेज पे एक रील गया, जो दोनों रील्स चल भी गई काफी. तो आशीष ने पहले मेरे पे जोक मारा कि इट डज मैटर हु वन, ये वाला. एंड वी बोथ वर डूइंग शो इन मुंबई. तो वी वर देयर. तो मैं जैसे बैठी हुई थी उसने मेरे साथ ही पोस्ट करी और फिर मैंने कहा रुक जा, मुझे इसका रिप्लाई सोचने दे. तो फिर मैं वो पोस्ट करती हूँ. तो हम दोनों आपस में जैम कर रहे हैं कि इसका क्या रिप्लाई हो सकता है, क्या रिप्लाई हो सकता है. फिर उसने ऐसी लाइन बोली कि ये बोल दे. मैंने कहा हाँ ये फनी लग रहा है. तो फिर मैंने उसी के सामने वो बोला और लोगों को लग रहा है कि वाह क्या बीफ चल रहा है इनका. तो we just have fun, but yeah, we are very good friends. He's like a big brother to me. He's been very, एक तो बोलता ना कि इंसान भी अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार क्यों जीत गया ये. तो फिर So how have things changed for you since you appeared on the show? a lot of things have changed actually. I don't matlab, I never thought that I will get this much love and support from people. पहले तो वही होता था कि 5-10 टिकट निकल जाएं, ओपन माइक्स पे लोग आ जाएं और फिर उसके बाद people are coming just to watch you and you're selling in hundreds and you're doing sold out shows across India. एंड देन यूर पोस्टिंग. एक तो वो वाला वन भी बहुत होता था स्टोरी डालने का कि यार मैं स्टोरी डालूं कि हाय गाइस हमारा एक शो सोल्ड आउट हो गया तो हमने दूसरा शो ऐड कर दिया है. एंड देन यू आर एक्चुअली डूइंग दैट. तो इट फील्स सरियल ओनली. बट हाँ, बहुत अभी भी मुझे कभी कभी हिट करता है कि ओह माय गॉड, दिस इज माय लाइफ. कि मतलब है ना, मुझे सिर्फ बात करने के लिए इतनी अटेंशन और इतना प्यार मिलता है, तो मुझे कि मेरा प्रोफेशन हो गया ये. तो या एवरीथिंग हैज चेंज्ड फॉर मी. बहुत ट्रैवल हो गया लाइफ में. बस वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक नेगेटिव पॉइंट है. बाकी तो सब अच्छा चल रहा है. अगर वो एक नेगेटिव पॉइंट है तो then तो as you grow you're just going to have to travel more. Yeah, I was talking to my team yesterday, the people who are with me, जो support system है हमारा. मैनेजर बोलना नहीं अच्छा लगता मुझे, सपोर्ट सिस्टम भी मैं बोलूंगी. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी तो हम ठीक ठीक ही हैं, कल को अगर मेरी वीडियो वगैरह चली या फिर कुछ अच्छा हो गया तो यार मैं तो बहुत थक जाऊंगी. तो
मुझे अब मुझे बड़ा भी बनना है लेकिन मुझे थकना भी नहीं है तो क्या करना है तो या वो तो है बट इट्स फाइन मतलब इट्स योर जॉब तो So अभी आप you're also touring with Panu Yaar, your solo show. तो उसके बारे में can you talk about that? What sort of comedy can like viewers expect? आई थिंक इट्स मोस्टली अच्छा हाँ मेरे को ये भी पहले मैं क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे बहुत डीएम्स आते हैं इट्स मोस्टली क्लीन मुझे ये लोग ये पूछते थे माँ बाप को ले आप मतलब मुझे क्या पता यार आप लोग क्या देखते हो बैठ के साथ में आई डोंट नो व्हाट इज क्लीन और नॉट क्लीन फॉर यू बट या इट्स मोस्टली क्लीन आई डोंट डू जैसा लोगों को लगता है ना कि ऐसा मटेरियल वैसा मटेरियल मेरा वैसा नहीं ऐसा नहीं कि उस मटेरियल में कोई प्रॉब्लम होती है बट हाँ मेरे सोलो में वैसी कोई बात है नहीं तो आप ला सकते हो बट अगेन तुम्हारी चॉइस है मैंने नहीं बोला और मेरे मुंह से स्टेज पे बहुत कुछ निकल जाता है तो मैं बोल भी सकती हूँ कोई ऐसा वो नहीं है ठीक है तो पहली तो मैं ये क्लियर कर दूं एंड सेकेंडली इट्स जस्ट अबाउट माई ओन लाइफ एक्चुअली जो मेरे टीनेज ईयर्स थे या जो मेरा कॉलेज था उसके बाद मेरी फैमिली के साथ रिलेटेड बातें so it's an hour of इधर उधर की bits and compiled and I'm still working on solo मतलब solo तो वही था ना बनता है तो अभी वो चल रहा है and yeah I think धीरे धीरे I'll start putting it out on YouTube also. So like like the Punjabi or North Indian male का experience तो हर जगह है. There's films, there's songs everywhere, but there's very few perspectives from the female perspectives on what it is to like to grow up there and all. So do the women, especially in Punjab, Chandigarh, do they resonate with your material? Like, do they reach out to you and talk about feeling seen? I think yeah, it's more being Punjabi से ज़्यादा I think मेरे मटेरियल में ना एक वो वाला पर्सपेक्टिव है कि बिकॉज मेरी लाइफ ये भी वो रही है कि आई जस्ट गॉट आउट ऑफ कॉलेज एंड started doing this unconventional thing which is comedy तो मेरी पर्सपेक्टिव वही रहती है कि मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी वहां से कुछ बात हो जाएगी तो हाँ मतलब लोग आके बोलते हैं कि अरे यार हाँ हमारे साथ भी होता था या हमारे स्कूल में भी होता था वो लड़कियां इनफैक्ट समटाइम्स कम अप टू मी एंड से लाइक कि हाँ यार इस बारे में आपने जो बात करी है ना तो ये ऐसे कुछ ऐसे जोक करती हूँ अबाउट व्हाट्सएप एंड सिंगल लड़कियों के बारे में और गर्ल्स कॉलेज के बारे में तो वहां पे मैंने काफी सुना है कि मुझे आके बोलते हैं कि यार इस बारे में हमने कभी बात नहीं किया आप इसके बारे में और बात करना कि यू आर राइट ये हो रहा है ये वो तो हाँ दे डू रेजोनेट विद मी बट हाँ नॉर्थ इंडियन ज्यादा आई थिंक इट्स अबाउट जनरल थिंग्स ओनली मतलब मैं ऐसे पंजाबी बारे में बहुत हाँ वो जब मेरे पेरेंट्स की बात होती है तब वो आ जाता है कि हाँ मैं पंजाबी फैमिली से आती हूँ तब वो हो जाता है कि हमारे घर पे भी यही होता है पर नहीं बट चंडीगढ़ या जालंधर में गर्ल्स स्कूल का एक्सपीरियंस और बॉम्बे के गर्ल्स स्कूल का एक्सपीरियंस भी तो काफी डिफरेंट होता है अभी स्कूल मेरा कोएड था कॉलेज मेरा गर्ल्स था हाँ कॉलेज का हाँ और कॉलेज मेरा चंडीगढ़ में था तो वो तो है बट हाँ आई एम श्योर वो डिफरेंट तो होगा पर मेरा कॉलेज जो था ना चंडीगढ़ में वो मेरे को लगता है न्यूयॉर्क के कॉलेजेस को दे टक्कर वहाँ पे जो लड़कियां थी तो you said like you've gotten into writing and आप Instagram पे भी कर रहे थे so any plans to move into sort of long format video maybe write a web series or write for other shows you've already written for one show you said yeah so हाँ मेरा obviously I've always had this interest of writing ऐसा long form of ये narration तो मुझे बहुत पसंद है अब अगर कोई देख रहा है वीडियो तो मुझे एक्टिंग का भी शौक है ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि नहीं तो अगर किसी को रोल देना हो मुझे तो ऐसा नहीं है हाँ मतलब वो प्लान है मेरा कि मैं आगे जाके आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट बट अभी के लिए बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सोलो एंड टू मच अभी मुझे स्टैंड अप प्रॉपरली करना है तो अभी तो स्टैंड अप इज माई प्राइमरी दिस थिंग प्रायोरिटी बट हाँ आगे जाके डेफिनेटली आई विल राइट सो यू स्मैश्ड इट आउट ऑफ द पार्क इन 2022 अभी 2023 के लिए व्हाट आर योर मेजर गोल्स फॉर द ईयर मेजर गोल फिलहाल जो सबसे इनिशियल है वो है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो रिलीज करना है तो मुझे उसके लिए मटेरियल आई एम वर्किंग ऑन दैट सेकेंडली यही है कि अपना सोलो बैटर करके थोड़ा एक इंटरनेशनल भी थोड़ा हो जाए एक आधी कंट्री और देख लूं मैं बाकी तो वही है जैसा चलता रहेगा वन डे एट ए टाइम अगर कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी आ जाएगी बी इट एक्टिंग और राइटिंग और समथिंग आई विल डेफिनेटली डू दैट उससे ज्यादा तो नहीं सोचा हुआ है Okay, thank you. Thank you so much. It's been a pleasure talking to you, Gurleen. थैंक यू सो मच एंड आपने जो क्वेश्चंस पूछे आई फेल्ट लिटिल काफी टाइम बाद इतना ऐसा मेरे को बात करने का और ऐसा फ्रेश सा फील हुआ कि किसी ने वो नहीं पूछा तो फिर लड़कियां आजकल ऐसा कर पा रही हैं तो लड़कियों का थैंक यू फॉर नॉट मेकिंग मी लड़कियों का मसीहा बाकी No, my editor is a woman and she would slap me if I asked that question.
Yeah. Thank you for not bringing gender into the profession. So yeah, I had so much fun. Thank you so much. And you guys are always amazing. तुम लोगों की ऐसा I keep stalking your social media. तो कितनी नई बातें पता लगती हैं आप लोगों से. You're like my newspaper to comedy. Thank you. I think we got an ad out of this also. Yeah, please do. Of course, we'll use it. And thank you once again. See you soon.